Welcome to Lit Mode. In this video, we will discuss about Indian economy's contraction, which has contracted by 23.9% in April to June quarter. So India, which was at 5th rank before the coronavirus pandemic and the lockdown, has moved down below UK if we get this data, and we were going to reach $3.2 trillion because of our high GDP growth of 6 to 7%, but now we are going to see a contraction, which is a very bad news for our economy. So we will go into the details, but before that I want you to listen our chief opposition leader, what Rahul Gandhi wants to say about this. बीजेपी की सरकार असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान है पूरी दुनिया में, अमेरिका में। Here he is talking about 2008 global financial crisis, but the major thing was that in this crisis the formal sector was hit hard, like the Indian IT sector, which is worth $200 billion nowadays, and the multiplier effect is too much. Like if you talk about real estate, tourism, travel, automobile, FMCG, every sector is impacted by India's IT sector because those people have high purchasing power and they drive our economy. So here Rahul Gandhi is talking about 2008 global financial crisis, and before that India didn't saw a major crisis, and after 91 only we saw a crisis, while US saw a dot-com bubble also in 98-99. जापान में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह आया। अमेरिका के बैंक गिर गए, कंपनियां बंद हो गई, एक के बाद एक कंपनी की लाइन लग गई, बंद हो गई। यूरोप के बैंक गिरे, मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा, मनमोहन सिंह जी बताइए, पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ, कारण क्या है? By the way, I think Rahul Gandhi would have went through few articles and he would have understood that India's economy is not totally formal sector. It's around 9-10% formal and 90% informal. That's why we don't have the labor data as well as the unemployment data, and on which NSO and CMIE provides scattered data. So Rahul Gandhi not went for an article, and he directly go to Manmohan Singh, the then Prime Minister and the Finance Minister in Narasimha Rao government, which brought the revolutionary change of LPG. But that was also not revolutionary because IMF forced India to bring LPG. मनमोहन सिंह जी ने कहा, राहुल, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो ये समझना होगा कि हिंदुस्तान में दो अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी संगठित अर्थव्यवस्था। संगठित अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियां, नाम आप जानते हो। असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज कंपनीज। जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। अब आज के दिन आते हैं, पिछले Now he is talking about 31st August when the data was released for April to June quarter of Indian economy, where we saw a contraction of 23.9%. 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। आप ये मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी, ये मत सोचिए कि गलती से। I partially agree with Rahul Gandhi on 2 points. Like demonetization was a nice move, but nobody was punished, and around 99.4% money went back to banks and RBI. So demonetization was not successful. And apart from, if we leave the terrorism and all those things, because in Jammu and Kashmir we saw the reduction in the all those fights, but for common man nobody was punished, nobody was offensed for black money, and till now nobody has got punished, and 4 years has passed. In GST, that is a good move, GST, one nation one tax, but the implementation was very bad, and the MSMEs and the small business got impacted, and GST also helped India to
means ruin its economy in a short term, but in long term that may be helpful. But yeah, the problem is implementation. We bring good policies, but our implementation is very bad in Notebandi also and in GST also. आखिरी मिनट में लॉकडाउन कर दिया गया। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का। So here you can see the 40 crore laborers are there in informal sector out of around 50 crore available workforce of India. है प्रधानमंत्री जी को अगर सरकार चलानी है, मीडिया की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है। मीडिया और मार्केटिंग 15-20 लोग करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में पैसा है, लाखों करोड़। मार्केटिंग की जरूरत है, मीडिया और मार्केटिंग। Here you can see an important thing. NDTV is not there. So NDTV, which is means being treated as a neutral channel, because I am also watching NDTV from last 10 years. They are sometime inclined towards opposition, but yeah, they always ask tight questions from the government. And Ravish Kumar also takes the front of a good journalist, and he has also got a Raman Magsaysay award for this. So here you can see that NDTV is not available, and Facebook is there. You can see there Facebook is available here, and that's a funny fact. After Cambridge Analytica and those incidents, Rahul Gandhi has put Facebook over here. So that's a funny thing. And Republic is there, India TV, News 18, G News, Delhi, Aaj Tak, and all those news channels are there. This is a South Indian channel also, and so you can see how Congress IT cell has designed this poster. 15-20 लोग करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में पैसा है, लाखों करोड़ रुपए, जिसको ये लोग छू नहीं सकते। इसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं। इसका नतीजा आएगा। नतीजा ये होगा कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर 90% से ज्यादा रोजगार देता है। जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। आप ही इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे ले जाते हो, और आपके खिलाफ साजिश हो रही है। आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। So this is part 1 of Rahul Gandhi's economy series. यहाँ पे राहुल गांधी आपको बातें बताएंगे इन सारी चीज़ों पे। तो एक आर्टिकल मैं ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि अभी केवी सुब्रमण्यम ने क्या बोला है। तो इन्होंने बोला है कि 1870 के बाद की सबसे गंदी ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है, और यहाँ पे पावर कंजम्पशन और सारे तरह के कंजम्पशन जो है रिड्यूस हुए हैं, इसलिए इंडिया इम्पैक्टेड है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कि 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन है। CSO ने ये डेटा रिलीज़ किया है मंडे को। ये वर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन है आफ्टर 1990s अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स। और यहाँ पे राजदीप सरदेसाई को एक इंटरव्यू दिया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र केवी सुब्रमण्यम ने, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि आगे जाकर के GDP जो है इंडिया की सुधर जाएगी और ये वी कर्व होगा, कोरोना का वी कर्व होगा, जैसे अभी इंक्रीज़ करेगी इकोनॉमी। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाकी चीज़ें उन्होंने मेंशन की है, और जैसा कि आप देख सकते हो इसमें इन्होंने बोला है कि यूके की इकोनॉमी भी 22% से गिरी है, और यूके की जो इकोनॉमिक साइज़ है वो इंडिया के बराबर ही है लगभग। तो इनका कहना है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है इतना बुरा नहीं है। और अगर बात करें लॉकडाउन की, तो अप्रैल मई में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, जिसके की कारण ये कॉन्ट्रैक्शन हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पे एक डेटा है कि किसकी इकोनॉमी कितनी गिरी है। तो ये G7 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि US की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा गिरी है 32% से, फिर इंडिया है, UK, फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी, जापान और चाइना। चाइना यहाँ पे पता नहीं क्या कर रही है। चाइना में इसी कंट्री ने कोरोना फैलाया और यही 3.2 के सरप्लस में घूम रही है। तो मैं तो कहता हूँ क्यों नहीं ये सारी कंट्रीज़ मिलके पहले इससे ही पूछ लेती है कि भाई तुमने क्या किया है। क्योंकि चाइना को ताइवान में भी घुसना है, तिब्बत में भी घुसना है, हांगकांग, साउथ चाइना सी, मतलब, और इकोनॉमी भी अपनी बढ़ाए जा रहे हैं। इन सारी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट देते हैं, हर जगह ट्रेड सरप्लस है इनका सारी कंट्रीज़ के साथ। तो मेरा तो कहना है कि पहले ये कंट्रीज़ आपस में डिस्कशन से पहले चाइना को ही पूछ ले कि क्या आपके पास वैक्सीन है, ये वायरस आपने कैसे फैलाया है। क्योंकि इम्पैक्ट देख रहे हो ना, US में तो 33% की कॉन्ट्रैक्शन है, वहाँ मास अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं किया चाइना के लिए, चाइना के साथ मतलब वैसा नेगेटिव, तो डोनाल्ड ट्रंप इज़ गोइंग टू लूज़ दिस इलेक्शन।
तो आगे हलचल जो है दिखनी शुरू हो जाएगी और अभी दिखा भी है, क्योंकि इंडिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है नेवी और यूएस के 2 रोनाल्ड रीगन भी साउथ चाइना सी में घूम रहे हैं। जापान में शिंजो अबे अभी सरकार जो है छोड़ चुके हैं अपनी तबीयत ख़राब होने के कारण, और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है और रक्षा मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर वो रेस में है, और जो भी वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर है वो बहुत हार्ड कोर है अगेंस्ट चाइना। तो अगर सेंकाकू आइलैंड पे जापान क्लेम करता है और यूएस इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक क्वाड पे आती है तो चाइना की हालत ख़राब होने वाली है। तो आगे जो है हम एक देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जहाँ पे यूएस इंडिया यूके और फ्रांस भी साथ होगा, कनाडा बिल्कुल साथ होगा, जर्मनी क्योंकि ये नाटो के पार्ट है, जापान साउथ कोरिया आपको पता है चाइना के अगेंस्ट ही होते हैं हमेशा, और इटली जो कि उतनी बड़ी डिफेंस पावर नहीं है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है 5G और हुआवे का जो चल रहा है उसमें भी एक D10 करके ग्रुप बना है जिसको यूके लीड कर रही है, क्योंकि यहाँ की कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है, एरिक्सन और ARM वगैरह। तो ये जो है चाइना की जो 5G है उसको रिजेक्ट करेंगे और अपना 5G, क्योंकि आगे जो है डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो जो फाइट होगा पूरा वो होगा ग्लोबल इकोनॉमी में, डेटा पे, डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि चुनाव देख रहे हो आप कैसे अभी पीछे राहुल गांधी ने फेसबुक दिखा दिया, तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके अलावा आप देखोगे तो रेलवे फ्रेट ट्रैफिक जो है वो गिर गया है, सुब्रमण्यम जी बोल रहे हैं वी सेफ्ड रिकवरी होने वाली है। और इन्होंने आगे बोला है कि स्पेनिश फ्लू जो कि 2 साल था तो वहाँ पे भी दिक्कतें हुई थी, और जो कंजम्पशन शॉक लगा है उसके कारण भी दिक्कतें आई हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जैसे पावर कंजम्पशन के लिए तो हमारा जो रिकवरी है वो अब हो रहा है और वो हम पिछले साल के मुकाबले उसी लेवल पे हैं। तो इनका कहना है कि नेक्स्ट क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कम देखा गया है जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर का एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया कि एक्ट ऑफ गॉड है ये, तो इसको इन्होंने डिफेंड किया है कि कंजम्पशन जो है इंडिया की जीडीपी का 60% है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो 12% है। तो जब आपका 27% डिक्लाइन हो रहा है कंजम्पशन में तो इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑफ जीडीपी। बट ये निर्मला सीतारमण को यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए के पास और भी अच्छे इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी और जयंत सिन्हा जो कि यशवंत सिन्हा के सुपुत्र हैं और हार्वर्ड से उन्होंने MBA कर रखा है। तो इनको बनाना चाहिए था, क्योंकि निर्मला सीतारमण के पहले भी बयान हमने देखे हैं, जैसे मिलेनियल्स के कारण कार नहीं बिक रही है, जबकि EV पॉलिसी इंडिया की बेकार है, टेस्ला को आप घुसने नहीं दे रहे हो, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का कुछ है नहीं, मॉरिस गैराज किया जो है इंडियन मार्केट को कैप्चर किए जा रहे हैं। तो आपकी पॉलिसीज़ ख़राब है और आप ब्लेम कर रहे हो किनको, मिलेनियल्स को, जो कि इकोनॉमी को लेकर सीरियस है और RBI नाबार्ड में जाकर और देश सेवा करना चाहते हैं। तो इसके अलावा वो जो लहसुन प्याज नहीं खाती है मैम वो वाला बयान भी था, फिर एक्ट ऑफ गॉड का बयान भी आ गया। ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड के कारण कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, बट आप अपने ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और अपनी पॉलिसीज़ भी सही करो। इसके अलावा गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है आत्मनिर्भर भारत के अंदर उसको रिवाइवल के लिए बोला गया है, बढ़िया है, बट देखो आत्मनिर्भर भारत रीपैकेजिंग है, इसके अंदर डायरेक्ट जो है कुछ अगर सच में इन्हें कुछ करना होता तो 5,000 रुपये के कूपन्स दे देते गरीबों को, मिडिल क्लास को, जिसको कि केवल हम यूज़ कर सकते हैं राशन शॉप्स पे या फिर ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर्स पे, तो कैश नहीं देते। और इससे एक इकोनॉमी का फ्लो भी मेंटेन होता है, क्योंकि इकोनॉमी क्या होता है, यहाँ पे डिमांड होता है ना, कंजम्पशन होता है सबसे पहले। अगर कंजम्पशन होगा तो ऑब्वियसली कंपनीज जो है प्रोडक्शन करेगी, जब कंपनी प्रोडक्शन करेगी तो ऑब्वियसली जॉब्स क्रिएट होंगे, जब जॉब्स क्रिएट होंगे तभी आगे लोग फिर से मैन्युफैक्चरिंग पे और कंजम्पशन में मूव करेंगे। तो बेसिकली कंजम्पशन का डिमांड जब होगा, जब कंजम्पशन डिमांड होगा तभी जो है प्रोडक्शन होगा, और जब प्रोडक्शन होगा तभी मैन्युफैक्चरिंग होगा, जब मैन्युफैक्चरिंग होगा तभी जॉब क्रिएट होगा। तो एक साइकिल है जो कि भी ब्रेक हो गया है क्योंकि कंजम्पशन ही नहीं है। तो अगर आत्मनिर्भर भारत की जगह फोकस किया जाता कि कंजम्पशन इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिवाइवल इतना आसान नहीं होने वाला है इंडिया के लिए। इसके बाद आप देखो कि जब उनसे पूछा गया कि मनमोहन सिंह का क्रिटिसिज्म सेंटर की इकोनॉमी को लेके, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, क्रिकेटिंग एनालॉजी खूब लेके आते हैं ये। जैसे इन्होंने बोला कि 50 ओवर मैच है, तो इन्होंने बोला कि शेन वॉर्न जो है उनको हमेशा आउटस्टैंडिंग डिलीवरी वो नहीं डाल पाते हैं, कभी कभी उनको छक्के भी लगते हैं, और तेंदुलकर जो है वो सपने में आते थे उनके। तो ये सब बातें बोल के उन्होंने घुमा दिया है। और आगे आप देखोगे तो उन्होंने बोला कि 3 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम है जो कि अनाउंस की गई है, बट आप बैंक में जाओगे तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा, और रूरल इन्फ्लेशन जो है हाइयर है। बट हाँ, एक इसमें न्यूज़ ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने लाज बचाई है इंडियन इकोनॉमी की, जो कि 16% अराउंड कंट्रीब्यूट करता है इंडियन GDP में। और आगे इन्होंने बैंकिंग सेक्टर की भी बात की है कि इंटरनेशनली इंडिया की इकोनॉमी रिकॉग्नाइज होती है, और अगर हमें एक बैंक जो है टॉप 100 में है तो हमें और भी बैंक चाहिए जो वर्ल्ड लेवल पे बढ़िया हो। आगे इन्होंने फिर से एनालॉजी यूज़ की है क्रिकेट की, MS धोनी जो है वो इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनली भी परफॉर्म करते हैं। तो
ऐसे ही बातें करें, इंपॉर्टेंट टू कीप सम एम्यूनेशन इन रिजर्व। तो इन्होंने फिर यहाँ पे बात की है जो फॉरेक्स होती है उसकी, कि हमारे पास फॉरेक्स अच्छा खासा है तो हमारी इकोनॉमी जो है अच्छे शेप में है, तो FPI आता रहेगा और कोई भी एक्सटर्नल शॉक झेलने के कंडीशन में है हम लोग। तो ये पूरी एक डिस्कशन है जो कि मैंने कवर किया है यहाँ पे, और आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। और आगे भी जो भी इकोनॉमी के डेटा आते रहेंगे उसमें मैं ज़रूर वीडियोस बनाता रहूँगा। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर पॉसिबल है तो आप बताएं कमेंट में कि और क्या आगे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ इन वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।